Americans are wealthier than any people in the history of the world. Yet many are stressed out about their finances. Are people living beyond their means even though their incomes are relatively high? Are they maxing out credit cards and living paycheck to paycheck? Are they saving for unexpected expenses? Can you be financially secure even if you don't make a lot of money? Can ordinary folks invest in the stock market with manageable risk? The answers to these questions are the beginning of a checklist for what we call financial literacy. When you talk about the checklist of things that people need to understand to be considered financially literate, I think it delves into a number of categories. It numbers into your basic everyday financial living, the basics of debt, and understanding just sort of what credit card debt means, what mortgage debt means, what a car payment means, budgeting, understanding money in, money out. It's stuff that really sometimes can seem very basic, but clearly is not. If you're not financially literate, then you have to worry about your spending. You have to worry if when you retire, you can meet your goals. It all starts. Expectation. Everyone has expectations, be it with yourself or others. अब सब जानना चाहते हैं कि मैं एक्सपेक्टेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो फिनेंस से रिलेटेड नहीं है, बट बिल्कुल फिनेंस से रिलेटेड है। आपने कुछ खरीदा, एक्सपेक्ट करते हो कि उससे वैल्यू मिले। ये वैल्यू ही फिनेंस का एक पार्ट है। तो जैसे आपने एक अमेजॉन एको खरीदा या कोई म्यूजिक एसेसरी खरीदी, तो आप चाहते हो उससे साउंड बेटर, तो वो ये आपकी वैल्यू है। तो ये आप एक्सपेक्ट करते हो एक प्रोडक्ट से। इसी तरह जैसे आपने कुछ खरीदा, आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आजकल बिटकॉइन बहुत फेमस है, तो सब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड बिटकॉइन से पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। अब हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन की। जैसे मान लेते हैं कि आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, आपने 5,000 लगाए बिटकॉइन में, और आप चाहते हैं कि आप 10% रिटर्न चाहते हैं एक साल में, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होती है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ये है, जैसे नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लाइक दैट व्हेन you invest 5,000, you need 10% रिटर्न। ये आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न इसलिए है क्योंकि आप चाहते हो कि इससे मुझे 10% का रिटर्न मिले। यही आप क्यों चाहते हो? क्योंकि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क कम है, बट आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, जो आपके नीड्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर सकती। Like if I'm a shareholder, I invest, let's say 100 crores in a company, I am expecting a return of 10%, let's say over 5 years, so let's say 40% CAGR over 5 years. Now as far as CGR is concerned, you can Google it up, because CGR is a long topic and we will be discussing it separately. I will have to give some tutorials on that, so I will discuss that separately. So investor is looking for 40% CGR over 5 years. So that is expectation, because he's betting on something, he's taking a risk, because nothing comes for free. The expectation comes from money, and this is where finance comes in. Money is invested to generate a return. Like I just told you, if you invest 5,000 in Bitcoin, you're investing money, you're investing time. So investing time, so you need 10% return to compensate for that investment and the risk you take to undertake that investment, because that same 5,000 can be invested in some other thing. You can buy a music system, you can buy an iPod. So this is what I was talking about. Now expectation कई तरह से होता है। जैसे आपने अपनी गर्लफ्रेंड से एक्सपेक्ट किया कि जब मैं उसको आई लव यू बोलूँ तो वो मुझे रेसिप्रिकेट करे, बट ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या सोच रही है, या वो किस तरह से रिएक्ट करेगी, या उसका क्या थिंकिंग प्रोसेस है। इसी तरह से आपने मान लेते हैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं आपने HCL टेक में इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये, और आपने अभी जो करंट मार्केट प्राइस है करीब करीब 1,200 रुपये का, उसी पे आपने HCL टेक को खरीदा, आपने 10 शेयर खरीदे, तो आपने 12,000 रुपये खर्च किए इसको लेने के लिए, 10 शेयर को लेने के लिए। अब चाहोगे कि इसका मुझे 20% रिटर्न मिले, चाहे 1 साल में या 2 साल में,
तो आपने एक रिस्क लिया है, बट आपने रिस्क लिया बिना कुछ जाने बिना समझे। जैसा कि मैंने बताया, आप चाहते हो कि वो लड़की आपको आई लव यू बोले, तो आई लव यू तभी बोलेगी ना जब उसको पता होगा आपके बारे में, और आपको पता होगा वो क्या सोचती है, वो कैसे अलाइन होती है, वो किन चीज़ों से अट्रैक्ट होती है। इसी तरह से जब तक आप स्टॉक के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक आप कंपनी को एनालाइज नहीं करेंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन का पार्ट है। और कंपनी का एनालिसिस कई तरह से होता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जो फंडामेंटल जो गूढ़ चीज़ है, फंडामेंटल ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी लड़की का फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल होता है हाइट, बॉडी, वेट। प्लीज़ बुरा मत मानेंगे, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ये फंडामेंटल होता है। तो वैसे ही कंपनी या एक स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस होती है, जिसमें आप उसका डिविडेंड देखते हो, उसका प्रॉफिट परसेंटेज देखते हो, उसका प्रॉफिट कितना है, पैट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, उसने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, ये सब चीज़ें आप चेक करते हो। उसमें कई तरह के रेशियोज होते हैं। ईपीएस होता है जो अर्निंग पर शेयर है, प्राइस अर्निंग रेशियो है जो मार्केट प्राइस और ईपीएस को यूज़ करता है। और इसके लिए बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाते हैं। कई टूल्स होते हैं, कई कंपनियां, स्पेशली अगर आप मनी कंट्रोल या फिर मोतीलाल मतलब किसी भी ब्रोकिंग हाउस के आप सब्सक्राइबर हो या आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको इन चीज़ों का बहुत इजीली एक्सेस मिल जाता है। एंड इवन मतलब एनुअल रिपोर्ट्स भी आती है, उसमें भी आप सिंपल भाषा में किसी सीए से पूछोगे वो समझा देगा। तो कई तरह के रेशियो, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, नेट एसेट्स रेशियो होता है, नेट इनकम रेशियो होता है। इस तरह के कई रेशियोज होते हैं, इससे आप स्टॉक के बारे में जान सकते हो। तो इससे आप बेटर एनालिसिस कर पाओगे कि कितना रिटर्न मुझे मिल सकता है या मिलना चाहिए, या फिर मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ ना करूँ। तब अगर आप एक्सपेक्ट करोगे, जिसमें मैं आ रहा हूँ, कि मुझे वो इतना प्रॉफिट दे, जैसे आप चाहते हो कि वो लड़की मुझे रेसिप्रोकेट करे, तो आप कर सकते हो जब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो यही सब इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। अब बेसिकली सिंपल तरीका होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था एंड आप गए घर। तो घर में माँ सबकी बहुत अच्छी होती है खाना बनाने में एंड घर के काम करने में, इसलिए गृहलक्ष्मी कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन था, आप अपने फ्रेंड के पास गए, उसके बहुत रिक्वेस्ट करके कोई काम कराया जो उसे आता है। तो इन दोनों को मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि समझाने में इजी हो जाएगा मुझे लेटर। अब दो तरह की चीज़ होती है। जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट लिया, जो हम माँ के घर टाइप यूज़ करते हैं, माँ का खाना टाइप, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है, उसमें रिस्क नहीं होता, लेकिन रिटर्न भी फिक्स्ड होता है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट है। उसमें आपको इतना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, लेकिन 8% नहीं है एक्चुअली में। अगर आप किसी भी बैंक में जाएंगे, 8% से थोड़ा कम या 8% करीब करीब आपको एफडी पे इंटरेस्ट रेट बैंक देगी। लेकिन आप 8% से खुश नहीं हो, इसलिए आप अपने फ्रेंड के पास गए और कमाने के लिए। तो उस और कमाने को हम बोलते हैं एडिशनल रिटर्न। ठीक है, एडिशनल रिटर्न कमाना मतलब जैसे आप चाहते हो कि 15% में कमाऊंगा, 8% से खुश नहीं, मुझे और चाहिए। तो आप फ्रेंड के पास गए, आपने 15% रिटर्न मांगा। तो 15% जो रिटर्न है वो एडिशनल है। और इस चीज़ को जो डिफरेंस होता है, जो 7% है, उसको हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं। जिसको आपने पढ़ा होगा, कैपेक्स मॉडल होता है। कैपेक्स एक क्या कहते हैं, थ्योरी मॉडल भी होता है, एंड इसको हम फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी करते हैं। तो आर एम माइनस आर एफ होता है। तो डिफरेंस है, इसको हम रिस्क प्रीमियम मानते हैं। और रिस्क प्रीमियम को समझने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। उसके बाद बचता है कि रिस्क कितना है। जैसे मैंने मान लो एचसीएल टेक की बात की। एचसीएल टेक आईटी कंपनी है, आईटी सेक्टर में है, तो उसका बीटा लो होगा। बीटा लो का मतलब है बीटा ऐसे होता है कि बीटा 1 से लेके लेस देन 1 होता है, x1 लेस देन 1। ठीक है, तो अगर बीटा 1 से कम है तो फिर उसका मतलब फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है। अगर वो 0.8 है तो फ्लक्चुएशन कम है, अगर 1 है तो बहुत ज़्यादा सेफ है, तब इतना अच्छा नहीं।
अगर हाई रिस्क होगा मतलब बीटा कम होगा तो फिर हाई रिवॉर्ड के भी चांसेस है। तो ये आपको एनालाइज करना था। इसी से इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे, जैसे एग्जांपल में 8% होगा, बीटा मान लेते हैं 1 से कम, और इसका डिफरेंस आपको मिल जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं, जो मैं अगले कुछ लेक्चर्स में जब हम आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे तब, क्योंकि तब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये होता है कि कितना रिटर्न दे इक्विटी का कॉस्ट। क्योंकि आपने पैसा लिया, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो पैसा लिया शेयर होल्डर्स, उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा डाला है, तो वो रिटर्न चाहते हैं, उसी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी के ही कहते हैं। तो ये तो बात हो गई बीटा और RMRF की। अब जो मेन चीज़ होती है इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना चाहिए, वो तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एनालिसिस किस तरह होता है? एनालिसिस कई तरह से होती है। बेसिकली आप इन्वेस्टर के लेवल में बताओ कि हम लोग जो कंपनीज में करते हैं एनालिसिस, जो वैल्यूएशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो मैं तो सेपरेटली बताऊंगा, क्योंकि वो उसके लिए अलग से हम एक सेशन रखेंगे। सो जो द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन टू थिंग, बेसिकली प्रॉफिट से होता है एंड कैश फ्लो से होता है।